Welcome to lecture 25 of HRM lecture series. In this lecture, we will learn about job evaluation, its meaning, objectives, and process of job evaluation. So let's start learning. Job evaluation is an act of measuring the relative worth of job to determine the base compensation for this job. Actually, when human resource manager has to decide what wages or salaries for a particular job are to be paid, first of all, he or she has to evaluate the job. That means the worth of the job that this worker is going to perform. And it is a systematic technique that compares and judges various jobs in a structured manner. Here, the job is evaluated and not the worker. So here the focus is on calculating the worth of the job. We are not calculating the performance or measuring the performance of the worker. Rather, we are measuring the worth of the job. Essential job requirements like skills, experience and responsibilities of various jobs are rated or ranked and compared to establish a fair wage rate and eliminate wage inequalities. तो हमें यहाँ से ये समझ आ रहा है कि जब हमें डिसाइड करना होता है कि किसी जॉब के लिए क्या वेजेस दी जाएंगी, क्या सैलरी पे की जाएगी, तो वर्कर की परफॉर्मेंस तो मैटर करती है, लेकिन उसके अलावा व्हाट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट इज द value of the job for the organization. So if the job is very valuable, if the job is very worthy, then the wages or the salaries for that job will be higher. Okay, so now we are proceeding towards understanding the process of job evaluation. That means how do we measure the worth of the job. So since we are talking of a process, so we will be discussing various steps to evaluate a job, right? And the first step is job analysis. That means, first of all, we analyze the job in detail. That is, we try to obtain job facts. कि job है क्या, उसमें क्या क्या काम होने हैं, total task. Okay, so we are analyzing the job as a whole. This is the first process. और job analysis करते हुए हमारा focus जाता है दो चीजों पर. One is job description, another is job specification. The job description is stating the duties of a job. यानी हर फ्रैक्शन ऑफ टास्क को हम यहाँ लिस्ट करते हैं कि एक जॉब को पूरा करने के लिए क्या क्या छोटे छोटे क्या क्या काम होने हैं. तो वी आर डिस्क्राइबिंग द जॉब इन डिटेल, राइट? एंड अदर स्टेप इज जॉब स्पेसिफिकेशन. यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि ये जो जॉब कंप्लीट होना है, ये जो छोटे छोटे काम करके पूरा काम खत्म होना है, इसके लिए क्या ह्यूमन क्वालिटीज चाहिए. यानी अभी हमने कहा कि we talk of skills, experience and responsibilities of various jobs. यानी इस एक जॉब के बारे में जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, वहां पर हम दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं. एक है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब को डिफाइन किया जा रहा है इन डिटेल, और दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन. यानी इस जॉब को जिसे अभी हमने डिस्क्राइब किया है, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज, बेसिक क्वालिटीज क्या चाहिए, क्योंकि वो वर्कर जो इस जॉब को पूरा करेगा उसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो इस जॉब को पूरा कर पाए. तो जॉब स्पेसिफिकेशन में वी आर stating the qualities that are required for a worker to complete this job. Okay, now on the basis of job analysis, job description and job specification, the next
स्टेप इज जॉब रेटिंग। तो जब हम जॉब को डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं, जॉब को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज दैट वी require from the worker for completing this job, we rate this job, we give some score to this job. Okay, so here relative scores are assigned to this पर्टिकुलर जॉब, यानी इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम कितना स्कोर देंगे इस काम को, क्योंकि पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी तरह के जॉब्स होने हैं, वेरियस जॉब्स आर टू बी परफॉर्म। तो फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब व्हाट विल बी द स्कोर इन टर्म्स ऑफ और इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स, क्योंकि अब ये हम रिलेटिव स्कोर की बात कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं इस जॉब को बाकी और जॉब्स के साथ। ठीक है, तो हेयर वी आर असाइनिंग रिलेटिव स्कोर टू दिस पर्टिकुलर जॉब, जिसे हम जॉब रेटिंग बोल रहे हैं, और ये जॉब रेटिंग की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब एनालिसिस। तो ये तीनों काम जब हम बहुत डिटेल में कर लेते हैं, उसके बेस पर हम इस जॉब को रेट करते हैं, इसको हम एक स्कोर देते हैं। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोर, जो स्कोर हमने दिया इस जॉब को ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, अब हम उसे मॉनिटरी टर्म्स में डिफाइन करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मनी एलोकेशन। यानी इस जॉब की वर्थ जो अभी हमने डिफरेंट जॉब से कंपेयर करके डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बेस पर इसको जो हमने वैल्यू दी, उसको हम मॉनिटरी टर्म्स में डिफाइन करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेजेस दी जानी है वो मॉनिटरी फॉर्म में दी जानी है ना, उसे हम ग्रेड की तरह तो नहीं दे सकते। तो मनी एलोकेशन कर रहे हैं, असाइनिंग मनी रेट टू जॉब एज पर इट्स वर्थ। ये जो स्कोर अभी हमने यहाँ पर दिया, उसके हिसाब से मॉनिटरी टर्म्स में वो कितने का हुआ, ये बताना मनी एलोकेशन हुआ। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप और द फोर्थ स्टेप, जहां पर हम कह रहे हैं कि आफ्टर जॉब रेटिंग वी असाइन money worth to this particular job, assigning money rate to job as per its worth. And then the last step in process of job evaluation is job classification. जब हमने मनी एलोकेशन कर दिया, मॉनेटरी टर्म्स में इस जॉब की वैल्यू बता दी, अब हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग ऑफ डिफरेंट जॉब्स अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ पे। ये स्केल ऑफ पे वगैरह हम आगे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट टू बिगिन विद जॉब इवैल्यूएशन में हम ये समझ लें कि जब हमने जॉब को रेट किया और उसके बाद मॉनेटरी टर्म्स में उसे डिफाइन किया, तो नाउ वी आर क्लासिफाइंग डिफरेंट जॉब्स इन डिफरेंट पे स्केल्स। तो वो सारे जॉब्स एक ग्रेड में रख दिए जाएंगे जिनकी मनी वैल्यू एक बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है या सिमिलर आ रही है। ठीक है, तो मनी एलोकेशन के बाद जॉब क्लासिफिकेशन, दैट इज ग्रेडिंग जॉब अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ पे। इसके साथ ही प्रोसेस की जो बात हमने खत्म की, यहां पे हमें समझ आया द प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन स्टार्ट्स फ्रॉम जॉब एनालिसिस एंड एंड्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्थ। तो ये देखिए क्या हुआ, हमने शुरू किया जॉब इवैल्यूएशन, जो हमने स्टार्ट किया दैट स्टार्टेड विद जॉब एनालिसिस, और कहां पर आकर वो खत्म हुआ, with job classification. So the process of job evaluation starts from job analysis and ends with classification of jobs according to their worth. Now the next topic that we want to discuss about job evaluation is objectives of job evaluation. हालांकि अभी तक थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ गया है कि क्यों जॉब इवैल्यूएशन किया जा रहा है, क्यों हम जॉब की वर्थ को मेजर करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं। क्यों नापना चाहते हैं? ताकि हम अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द जॉब, हम वेजेस और सैलरीज पे करें अपने वर्कर्स को। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी
कम वैल्यूएबल जॉब के लिए हम ज्यादा वेजेस पे कर रहे हो और किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वर्दी जॉब के लिए हम कम वेजेस पे कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो वर्कर्स हैं वो डिमोटिवेट होते हैं, इनइक्वालिटी आती है, डिससैटिस्फैक्शन आता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर टू इवैल्यूएट द जॉब इन डिटेल and pay the wages according to the worth of the job that the worker is performing, right? So let us list various objectives of job evaluation. बाद में हम इसे ये भी बताएंगे कि all these are the benefits or advantages of job evaluation, क्योंकि जो objectives हैं अगर वो पूरे हो रहे हैं, it means the benefits of job evaluation we are getting. Okay, so the very first objective of job evaluation it is to achieve equitable wage structure within the organization. इसको हम internal consistency बोलते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटेबल वेज स्ट्रक्चर हो, जो वर्कर जितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जितना वैल्यूएबल काम कर रहे हो, उनको उतनी ज्यादा वेजेस मिले, राइट? तो यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी बने, इनकंसिस्टेंसी ना हो कि किसी को कम काम के लिए ज्यादा वेजेस, कम इंपॉर्टेंट काम के लिए ज्यादा वेजेस मिले और किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए कम वेजेस मिले, तो दैट विल लीड टू ईदर अनार्की और डिससैटिस्फैक्शन अमंग दी वर्कर्स। तो वो अवॉइड करना है, इंटरनल कंसिस्टेंसी लानी है। तो the first objective of job evaluation is achieving equitable wage structure within the organization. Next objective is achieving equitable wage structure as per the industry. यानी we are talking about external consistency. सिर्फ within the organization ही consistent ना हो wage structure, ये इंडस्ट्री में जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस काम के लिए कितनी वेजेस देते हैं, ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि वो इक्विटेबल होना चाहिए। हम जो वेजेस पे कर रहे हैं एक काम के लिए, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी उतने ही तरह उसी लेवल की वेजेस पे करें, ये इंश्योर करना जरूरी है। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी लाना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक काम के लिए कम वेजेस दी जा रही हैं और हमारी इंडस्ट्री में ही बाकी ऑर्गेनाइजेशंस उस काम के लिए ज्यादा वेजेस देते हैं, तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या आएगा कि हमारी वर्कफोर्स जो ये काम कर रही है जिसके लिए हम कम वेजेस दे रहे हैं, वो हमें छोड़कर जाएगी, लेबर टर्नओवर बढ़ेगा और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, है ना? या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ज्यादा वेजेस दे रहे हैं और बाकी तो कम वेजेस दे रहे हैं इन द सेम इंडस्ट्री, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर अस। होगा क्या कि बाकी लोग हमारे पास आके काम करना चाहेंगे बिकॉज वी आर पेइंग हायर वेजेस, बट इट इज नॉट फेवरेबल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम एक लिमिट तक ही तो वर्कर्स को हायर कर सकते हैं ना, हम इसलिए तो वर्कर्स को हायर नहीं करेंगे कि वो हमारे पास आके काम करना चाह रहे हैं, हम इसलिए वर्कर्स को हायर करते हैं कि हमें उनकी जरूरत है। अब अगर जरूरत से ज्यादा वर्कर्स हमारे पास आ रहे हैं जस्ट बिकॉज वी आर पेइंग हायर वेजेस, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। इनफैक्ट हम अपना कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, राइट? तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हमसे ज्यादा वेजेस देते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जॉब इवैल्यूएट करना है इन सच अ मैनर कि हम एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी ला पाए, हम उसी तरह की वेजेस पे करें जैसे कि इंडस्ट्री में बाकी ऑर्गेनाइजेशंस इस काम को करने के लिए वेजेस देते हैं, ठीक है? तो जॉब इवैल्यूएशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हुआ, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज टू क्रिएट अ साउंड बेस फॉर इंसेंटिव्स। अब देखिए, अगर हमने जॉब को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट किया है और हमने वेजेस अकॉर्डिंगली डिसाइड की हैं, तो अगर कोई वर्कर उससे ज्यादा अच्छा काम करता है, जितनी वेजेस हमने जिस काम के लिए डिसाइड की हैं, अगर उससे ज्यादा अच्छा काम करता है, तो वी हैव अ रीजन टू पे इंसेंटिव and we have a reason to explain other workers that why we are paying more, why we are giving incentive to some workers and not to all.
क्योंकि जो सब लोग काम कर रहे हैं उसके लिए तो हमने वेज स्ट्रक्चर बना लिया ऑन द बेसिस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, लेकिन कुछ वर्कर्स जो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो वी हैव अ रीजन to pay incentives to good workers, good performance, right? Next is job evaluation helps in gauging and controlling payroll costs. अभी मैंने कहा कि अगर हम ज्यादा वेजेस पे करेंगे, जो बाकी इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज पे कर रही हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस पे कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा हम पे करते हैं, यानी एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी अगर हमारे पास नहीं है, तो होगा क्या, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएंगी। और एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेजर पोर्शन ऑफ आउटले होता है, जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, वो पेरोल कॉस्ट्स ही होते हैं। तो यानी वेजेस और सैलरीज जो पे की जाती हैं, दैट इज अ मेजर चंक ऑफ टोटल आउटले। ठीक है, तो अगर हमने जॉब को ठीक से इवैल्यूएट किया तो वी कैन गेज एंड कंट्रोल पेरोल कॉस्ट्स, हम उन्हें कंट्रोल में रख सकते हैं, अननेसेसरीली वो बढ़ जाए ये नहीं होगा, बिकॉज वी हैव इवैल्यूएटेड द जॉब प्रॉपर्ली। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज टू गेज एंड कंट्रोल एंड मैनेज पेरोल कॉस्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज to serve as a basis for negotiation with trade unions. Organizations में ट्रेड यूनियंस होती हैं वर्कर्स की, और ट्रेड यूनियंस का काम होता है नेगोशिएट करना ताकि वेजेस ज्यादा मिल पाए वर्कर्स को। नाउ मैनेजमेंट मस्ट हैव अ प्रॉपर स्केल, अ प्रॉपर रीजन कि क्यों वो ये पर्टिकुलर काम के लिए वेजेस इतनी दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो अगर जॉब को अच्छे से इवैल्यूएट किया गया है, जॉब की वर्थ निकाली गई है, तो हम ट्रेड यूनियंस के साथ इस बेस पर नेगोशिएट कर सकते हैं कि व्हाई वी आर पेइंग अ पर्टिकुलर वेज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड व्हाई वी आर नॉट पेइंग हायर वेजेस, राइट? सो job evaluation serves as a basis for negotiation with trade unions. Next is, it helps in avoiding wage discrimination on the basis of age, gender, region, etc. Normally एक ये टेंडेंसी होती है कि एज के हिसाब से वेजेस कम या ज्यादा दी जाती हैं, जेंडर के बेस पर वेजेस कम या ज्यादा दी जाती हैं, या कोई पर्टिकुलर रीजन कि if the worker belongs to a particular region तो उसे वेजेस कम मिले या ज्यादा मिले। तो अगर हमने जॉब को अच्छे से इवैल्यूएट किया हुआ है तो हम एक वेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द वर्कर एज सच। तो अगर वर्कर से ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये जॉब से रिलेटेड है जो वेजेस हम डिसाइड कर रहे हैं, तो नेचुरली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, रीजन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो वर्कर्स के फीचर्स हैं, है ना, जॉब के फीचर्स नहीं है। तो हमने जो वेजेस डिसाइड की हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ job evaluation. Therefore, it helps in avoiding discrimination on the basis of age, gender, region, etc. Okay. Next is, it helps in reducing grievances and labor turnover. Obviously, अगर हमने logically job को evaluate करके wage structure बनाया है, तो हमारे वर्कर्स में ग्रीवेंसेस नहीं होंगी और वर्कर्स हमें छोड़कर जाएंगे नहीं। और अगर इसका उल्टा हुआ, यानी अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं हुई इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो डेफिनेटली देयर विल बी ग्रीवेंसेस एंड पीपल, वर्कर्स वुड लीव अस, राइट? सो proper job evaluation helps in reducing grievances and labor turnover. Another objective of job evaluation is that it helps in standardizing the process of wage determination. Wage को determine करने में help मिल रही है और uniform and standard process बन रहा है, यानी किसी मैनेजर की मर्जी के हिसाब से वेजेस ऊपर या नीचे नहीं हो रही हैं, rather it is based on प्रॉपर जॉब इवैल्यूएशन। तो अगर हमने जॉब इवैल्यूएशन अच्छी तरह से किया है तो वेज डिटर्मिनेशन स्टैंडर्डाइज्ड होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, it helps in reducing the cost of recruitment and selection of workers. If we have evaluated the job properly,
अगर जॉब को हमने डिटेल में इवैल्यूएट कर रखा है, तो जब हम वर्कर्स को रिक्रूट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, तो हम सही वर्कर को रिक्रूट करेंगे, सही वर्कर को सिलेक्ट करेंगे एज पर द नीड ऑफ द जॉब, right? And therefore, since we are making right recruitment and right selection, so the cost of recruitment and selection also goes down. अगर हमने यहाँ गलती की, अगर हमने जॉब को ठीक से इवेल्युएट नहीं किया और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फॉल्टी था हमारा, तो या तो वर्कर हमें छोड़ के चले जाएंगे, इफ वी आर पेइंग देम लो वेजेस, तो हमें फिर से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर से खर्चा हो जाएगा, या फिर अगर हम वेजेस हाई पे कर रहे हैं, तो वर्कर्स तो हमारे पास बने रहेंगे, लेकिन हमारा ये सिलेक्शन सही नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि हमारी जो पेरोल कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगी, राइट? तो जॉब इवैल्यूएशन ये भी हेल्प करता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स की कॉस्ट घटे, क्योंकि हमने जॉब को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर लिया। सो द जॉब इवैल्यूएशन इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ये एक बात ध्यान रखने की है कि इतने सारे फायदे मिल सकते हैं जॉब इवैल्यूएशन से, और एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसे हम फॉलो करते हैं जॉब इवैल्यूएशन करते हुए, बट स्टिल जॉब इवैल्यूएशन इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। बट इफ यूज्ड रैशनली, अगर हम ऑब्जेक्टिव तरीके से, अगर हम लॉजिकल तरीके से जॉब इवैल्यूएशन को यूज करें, तो इट अवॉइड्स अ नंबर ऑफ एनॉमलीज इन वेजेस। यानी वेजेस में अदरवाइज बहुत सारी तरह की एनॉमलीज आ जाती हैं, और वो एनॉमलीज ऐसी हो सकती हैं कि कम काम के लिए ज्यादा पैसे, ज्यादा काम के लिए कम पैसे, और definitely it leads to dissatisfaction among workers. तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, but if job evaluation is proper, it helps in avoiding these anomalies in wages. So that's all for this particular lecture, and we'll learn about some more topics of job evaluation in next lecture.